So today we'll start with the NOR implementations. So we have studied already the NOR gate, right? So NOR gate is also one of the universal gate. So like your NAND gate, as we have done in the last class. So this NOR gate is also a universal gate. It means any gate can be designed using this NOR gate, right? So suppose we want to make a NOR gate as a, let's say, OR gate or NOT gate. How to do that? So let me explain you that first. Let's write the truth table of NOR gate. 0 0 0 1 1 0 1 1, right? For NOR gate, what is the output for 0 0? 1 1. For 0 1, 0 then 0 0 0. 0. right. So looking into this table of NOR gate, this is my NOR gate truth table. I can justify that if my both the inputs are 0, my output is 1. And if both the inputs are 1, the output is 0. It means if I take a NOR gate, I will short. yes, short the two inputs and give the input A, you will get A bar. So this is the way how you can make the NOR gate to act as a NOT gate. Right. Likewise, if suppose you want to make NOR gate as a OR gate, so you need to just complement this, है ना? तो क्या करोगे उसके लिए? We will simply take a NOR gate, give the two inputs A and B, and we know that the output will be what? A plus B the whole complement, and we want at the output just A plus B. So इसको short कर देंगे जो भी आया हुआ है ये A plus B. Yes. So this is the way to form the NOR gate to work as a OR gate. Similarly, if suppose I want to make NOR gate as an AND gate. So for that, just draw a NOR gate at the output side and write the NAND gate output. NAND gate output क्या होती है? If A and B are input, it's A dot B, isn't it? Yes, sir. Now, if A dot B is required, what should be the output here? So I know that for a NOR gate, the output should be, output is what? A plus B, the whole complement, or Sure. A bar Complement A bar dot B bar. dot B bar. Isn't it? So it means for this particular scenario where my output is A dot B, what should be the probable inputs? A bar and B bar. Very good. Because whatever I feed, I will get at the output the individual complements and their dot. Now, to obtain A bar, again we have to go back and use a NOR gate. Short circuit. Very good. Short. We will say short two inputs, not circuit. Short the two inputs, right, and feed the common input A. Suppose here. Likewise, here also make another NOR gate, and you can short the two inputs and give the B. So this is the way how you can make the NOR gate to act as a AND gate. Is this thing clear to everyone? सर हाँ बोलो. सर एक बारी बता दो ये पता कैसे लग रहा है कि मतलब चीज? कब सर कब शॉर्ट करने हैं कब मतलब आगे एंड जब आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए. देखो हमने पहला क्या बनाया, ये वाला देखो. Whenever I want a NOT operation, NOT का मतलब क्या है? A कॉम्प्लीमेंट चाहिए, B कॉम्प्लीमेंट चाहिए, C कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कोई भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए किसी का भी, तो आप क्या करो? उस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करो? एक NOR गेट यूज करो, उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट करो एंड वी गेट द A कॉम्प्लीमेंट. ये कैसे आया? फ्रॉम दिस टेबल पे देखो ध्यान से. फॉर सेम इनपुट्स 0 0, आउटपुट इज 1 1 1 0. It means for giving input 0, I am getting output 1. For giving output input 1, I am getting 0. So I am making the first NOR gate to act as a NOT gate. Then we have studied the NOR as a OR. Simply क्या किया? A भी input दिया NOR को और output जो है उसको फिर से complement कर दिया to get a OR. And this is a AND gate. Is it clear to everyone? Any doubt? No, sir. Okay, let's erase this first. Okay, now next is let's study the OR operation, AND operation. So NOR operation is x, y, z. We give the input and output we get x plus y plus z the whole complement, right? This is a OR invert, means पहले ORing हो रही है फिर inverting हो रही है. The same thing can be done as invert AND, means पहले invert कर दो फिर उनकी ANDing कर दो. That is x bar, y bar, z bar, and you're getting output x bar dot y bar dot z bar. So both the ways are giving the same thing. Both are NOR gates.
But here it is we are performing OR invert. Here we are performing invert and. पहले invert कर रहे हैं फिर AND कर रहे हैं. यहाँ पर पहले OR कर रहे हैं फिर invert कर रहे हैं. Right. So now let's study the NOR implementation. So NOR operation is a dual of NAND operation. So जो हमने NAND किया था उसका dual है. Dual का मतलब क्या था याद है ना? क्या होता है dual का मतलब? Anybody? सर जो डॉट होता है उसको प्लस कर दो एंड वाइस वर्सा, और जो हाँ. 1 है उनको 0 बना दो. Very good. So here, if the Boolean expression is in the SOP form, then the same function can be expressed in POS form by number one method, taking those minterms for which the function value is 0, obtaining the minimal SOP expression using the K-map by combining zeros and taking its complement. This is one method. Another method is considering those max terms for which the function value is 0 and obtaining minimal POS expression using the K-map. So any other method can be used. So here you can see the function is given as f is equal to a plus b into c plus d into e, right? For this function implementation, they have drawn this circuit using simple gates, right? Now, if suppose somebody asks you, you have to draw it with the help of NOR gates. तो कैसे बनाओगे? Let's try it. We'll not see it today. So let's try this. तो क्या करना है? पहला प्रोसीजर होगा कि आपको फंक्शन को एनालाइज करना है किस फॉर्म में है. प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो एक नॉर गेट बनाओ आउटपुट के ऊपर, और यहां पर तो फंक्शन मेरा a प्लस बी डॉट सी प्लस डी डॉट ई है ना. अब यहां पर देखो ये फंक्शन जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में है. तो प्रोडक्ट फॉर्म में नॉर गेट की आउटपुट क्या होती है? a बार डॉट b बार, कॉम्प्लीमेंट्स है ना. तो इनपुट्स क्या होगा इनका? इंडिविजुअल बिट का कॉम्प्लीमेंट. तो एक इसको उठा लो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले वाले में a प्लस b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, सेकंड वाले में c c प्लस d का d होल कॉम्प्लीमेंट, और e तीसरे वाले में कॉम्प्लीमेंट. e का कॉम्प्लीमेंट. इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर. यस सर. जब भी इंप्लीमेंटेशन करनी है सबसे पहला फोकस क्या होगा? आप आउटपुट पे जो भी, अगर नैंड यूज करो तो नैंड बनाओगे, नॉर यूज करो तो नॉर बनाओगे, जो भी गिवन जो मांगा होगा आपसे. अगर कुछ नहीं मांगा तो इट्स योर चॉइस. तो यहाँ पर हम नॉर से इंप्लीमेंट करें तो हमने पहले नॉर गेट आउटपुट बनाया, उसका फंक्शन लिख दिया यहाँ पर, एंड देन वी हैव सीन दैट कि दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म. तो प्रोडक्ट फॉर्म में नॉर गेट की आउटपुट ऐसी होती है, तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल को कॉम्प्लीमेंट कर दो. तो हमने इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दिया. नाउ टू ऑब्टेन दिस कॉम्प्लीमेंट्स अगेन टेक अ नॉर गेट. कॉम्प्लीमेंट करना तो आपको दोनों को इनपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर इनपुट क्या आ जाएगी? अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगी, क्या हमें उसकी जरूरत है? हम सीधा भी कर सकते हैं बिना शॉर्टिंग के. बताइए सर a और b आ जाएंगे. ए और yes, बी आएगी. yes as per the definition of NOR gate. कि अगर मैं a और b इनपुट देता हूं तो आउटपुट क्या आती है? a plus b का होल कॉम्प्लीमेंट. Likewise here also give c and d, and for generating e complement here you need to short the two inputs. So this is my circuit implementation using only NOR gates. And always make sure that whenever they are asking कि you need to implement using only NOR gates, so you are not supposed to use any other gate. ये ना हो कि NOR के साथ एक नॉट लगा दिया आपने, एंड लगा दिया, कुछ नहीं. अगर बोला only NOR gates तो only NOR gates ही यूज करने हैं. अगर बोला only NAND gates then only NAND gates to be used. Right? Okay, let's see now what's there in the slide. See, this is what we got here. What they have done is that they have made the use of invert AND. This invert AND is also a NOR gate. This is a two-way representation rather. So see this, वो जो हमने बनाया है. यहाँ पर इन्होंने e complement ले लिया. e complement के लिए भी आपको एक NOR gate चाहिए होगा. Right. So we have seen the implementation of SOP and POS form, especially using AND or invert. Right. So these logic implementations could be also be implemented using the universal logic gates, that is NAND NOR. तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि you have to implement using the universal gates, so it's your choice. Either you can go for NAND gate or you can go for NOR gate. But दोनों में से एक करो, ये नहीं कि दोनों बना रहे होंगे वहां पर. Right. So now we'll learn the steps to convert multi-level logic circuits to only NAND or only NOR implementations.
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको एक मल्टी लेवल लॉजिक सर्किट गिवन है, उसको आपने इंप्लीमेंट करना है यूजिंग ओनली NAND गेट्स. Suppose this function is given to you, right? So can you tell me what is the output of this function? बनाओ जरा. यहां से a आ रहा है ऊपर, इस AND गेट से क्या मिलेगा? स्पीक आउट. A dot B a डॉट b. नीचे और गेट से क्या मिलेगा? C plus D C plus D. c plus d. यहाँ पर NAND गेट पे क्या आएगा? A dot B dot C plus D का whole complement. और यहाँ पर और में क्या मिलेगा? a plus A plus A dot B dot C plus D का whole complement. complement. राइट. अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा? मेरा f क्या बन गया? a plus, if I open this, so let's write a dot b का बार plus c plus d का होल बार. a plus a बार plus b बार plus c बार into d बार. a plus a बार क्या बन गया? 1. Yes sir. 1 plus b बार plus c बार d बार. क्या आएगा आंसर? 1 ही आएगा. 1 है. नाउ लेट्स चेक इट आउट कि क्या किया हुआ इसके अंदर. इन्होंने सिंपलीफाई नहीं किया उसको. दे आर सिंपली इंप्लीमेंटेड इट. सो लेट्स डू दैट. अगर सिंपलीफाई करोगे डेफिनेटली आपका आंसर 1 ही आएगा. सो दे सेड कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस, जो भी फंक्शन गिवन है आपको उसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द NAND गेट्स ओनली, राइट? लेट्स डू इट. अब हमारा फंक्शन आया था, लेट मी टेक दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर देखो इन्होंने स्टेप्स में सिखाया, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ अभी जो सबसे सिंपल है आपका. कि आपका फंक्शन जो आया था अभी जो मैंने निकाला था, लेट मी अगेन राइट द फंक्शन. f was coming as a plus a dot b into c plus d the whole complement. यही आया था ना, है ना? तो अब मान लो मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग ओनली NAND गेट्स. तो क्या करूंगा मैं? एक NAND गेट बनाऊंगा आउटपुट के ऊपर. सी, कभी भी इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज, बट जो मेरे को सिंपल लग रहा है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ अभी, राइट? उससे गलती की चांसेस कब से सबसे मिनिमम होगी. आपको जो आउटपुट गिवन है वो लिख दो यहाँ पर, a plus a dot b dot c plus d the whole complement. अब NAND गेट में अगर NAND गेट को जरा रिकॉल करो, NAND गेट का आउटपुट क्या होती है? a dot b the whole complement और a bar plus b bar. So this is in the form when it is given in product. This is the form when it is given in sum, है ना? तो यहाँ पर sum की फॉर्म में given है आपको, तो इट मीन इसकी इनपुट क्या होगी बताइए? सर ए A बार. bar. एक A bar और होगी. नीचे क्या होगी? A dot B dot C plus D. All agree with this? Now to generate a bar, simply short it. ये आ गया. अब आपको ये जनरेट करना है दिस प्रोडक्ट. अब ये प्रोडक्ट फॉर्म देखो, ये वाली a dot b the whole bar. पहले तो शॉर्ट कर देंगे ना इसको. Yes, very good. तो पहले इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है, इस वाली फॉर्म में, राइट? सो विल गेट a dot b dot c plus d the whole complement. ये इनपुट दिया मैंने इसको, तो ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पर. अब अगर ये मेरे इनपुट है इसकी, तो ये कहाँ से आएगी? अगेन फ्रॉम अ NAND गेट. अब इसकी इनपुट्स क्या होंगी देखो, अगर a और b इस फॉर्म में आ गया ना, सो ये आपका इस फॉर्म में आ गया, राइट? नाउ अब इसकी इनपुट्स क्या होंगी? वन इज a, B. वन इज b, थर्ड C वन plus इज D. c C प्लस. plus D. अब a भी तो सिंपल आ गया, अब c प्लस d आपको लेके आना है, तो क्या करेंगे? What should be the inputs? C plus D. C Some form में complement ना? D complement. Yes. C complement D complement. D complement. Yes. हाँ, तो उनके लिए आप शॉर्ट कर देंगे शॉर्ट सर. कर. yes. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैंने सर. देखो सबसे सिंपल तरीका देखा कि जब भी आपने किसी भी गेट से इंप्लीमेंट करना, NAND से करना या नॉट से करना, तो पहला प्रोसेस क्या रखो माइंड में, लेफ्ट पे साइड पे लिख लो कि उसकी आउटपुट कैसी होती है.
जैसे मैंने लिखा ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये आपके सम फॉर्म में है। तो फिर देखो मेरे एक्सप्रेशन से किससे रिलेट करो, यहाँ पर सम है, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, उससे रिलेट करो, राइट। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तभी आप लिस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट्स क्या होंगे। सो आई फील कि दिस इज द सिंपलेस्ट वन टू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑन द पीपीटी आल्सो। पीपीटी में जो सर हाँ बोलो। सर अगर कल को हमको मतलब एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर ऐसे हैं तो हम ऐसा बनाकर भी छोड़ सकते हैं ना। हाँ नहीं तो ये सब पूरा तो हो गया क्वेश्चन। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं कि ए आपने दूसरी साइड लिखा ए भी दूसरी साइड लिखा, हमको कनेक्ट करना है ऐसा नहीं नहीं कुछ। नहीं नहीं कुछ नहीं है ऐसा बच्चा, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ बस ये पूछना आपका था जो सर। ये मैंने मान लो ए ऊपर बनाया, आपने नीचे बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को ऊपर बना दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर हार्डली मैटर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लिख रहे हो इनपुट्स, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक इनपुट लाइन के ऊपर आपने लिखना है कि यहाँ पर क्या इनपुट आ रही है, सो दैट आपकी मिस्टेक में ना हो और जो चेक कर रहा है उसको पता लगे हाँ यू नो द कंसेप्ट कि यहाँ पर क्या आ रहा है, किसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है किसका नहीं हो रहा, राइट। ओके सर। नाउ लेट्स हैव अ look into the slide. So they have given you step 1, let's say add bubble at the output of AND gate and nullify its impact by adding an inverter after the bubble. क्या किया उसने यहाँ पर, इस AND को हटाने के लिए इसने क्या कहा कि एक NAND लगा दो, बबल लगा NAND के आगे, तो इट मींस इसको नलिफाई करने के लिए एक नॉट गेट लगा दिया इसने यहाँ पर आगे। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप कर रहा है ऐड बबल एट द इनपुट ऑफ OR गेट एंड नलिफाई इट्स इम्पैक्ट, फिर अब यहाँ पर लगा दिया बबल। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, राइट। फिर देखो आगे क्या किया उसके बाद, फिर स्टेप 3 रिप्लेस बबल OR गेट एंड नॉट गेट्स विद NAND गेट्स एज शोन बिलो। तो फाइनली घूम फिर के सर्किट ऐसे बनेगा आपका, चाहे आप जो मर्जी प्रोसीजर फॉलो करो। तो जो हमने बनाया था चेक करो उसमें कितने NAND गेट्स लगाए थे हमने, काउंट करो। सर 7। इसमें कितने लगे हुए हैं, 7 7 ही लगे हैं सर। right? So it means as long as the number of NAND gates requirement is same in my circuit and in this circuit, और मान लो आपने दो बच्चों ने बनाया, दोनों उसका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायरमेंट सेम आ रही है, तो इट माइट बी सेम, कोई इशू नहीं है। आंसर सेम नहीं हो सकते लेकिन आपके दोनों ठीक हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। और सर हाँ बोलो बोलो। सर ये हर बार ये सेम नंबर के आएंगे या कभी कम भी हो सकता है? अगर कम होगा तो फिर इसका मतलब आपका मिनिमल नहीं आ रहा। ओके सर। चलो और देखते हैं, अब नॉर गेट से करते हैं। अब ये फंक्शन गिवन है, इसको आप नॉर गेट से करके दिखाओ मुझे जरा क्विकली। ये सेम फंक्शन लिया है हमने, है ना। तो यहाँ पर हमारा f क्या था, ab c plus d the whole complement dot डॉट था प्लस प्लस था प्लस ए प्लस a था, ये फंक्शन था। अब इसको मेरे को नॉर गेट से इंप्लीमेंट करना है सेम फंक्शन को। तो जब नॉर गेट से करना तो पहले नॉर गेट की आउटपुट देखो कैसी होती है, a plus b the whole complement, या होती है a बार डॉट b बार। तो ये किस फॉर्म में है हमारा जो फंक्शन गिवन है, सम फॉर्म में है, लेकिन ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट पहले शॉर्ट कर देंगे। यस तो पहले शॉर्ट करो इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई विल राइट f कॉम्प्लीमेंट, तो आपको f मिल जाएगा, राइट। अभी f कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ गया, इट मींस इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया अभी। अब इनपुट्स क्या होंगी, इस फॉर्म में आ गया ना, a प्लस b, तो इसमें a क्या हुआ, दिस थिंग, ये b क्या हुआ, ये वाला। तो वन इनपुट शुड a, वन इनपुट शुड बी a डॉट b डॉट c प्लस d का होल होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब a तो यही रहेगा, अब ये वाला इस फॉर्म में आ जाओ, अब ये किस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में, प्रोडक्ट वाली फॉर्म में है। बट अभी इसके ऊपर पूरे के ऊपर इन्वर्ट लगा हुआ है ना, तो हमें ये इन्वर्ट हटाना है पहले तो वो कैसे हटाएंगे, शॉर्ट करें। शॉर्ट कर शॉर्ट देंगे। कर दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा,
A डॉट B डॉट C प्लस D। अब ये कैसे मिलेगा आपको? अगेन फ्रॉम अ नॉर गेट। इसकी इनपुट्स क्या होनी चाहिए बताओ? A अभी bar, इसको B bar A bar, और C B plus D bar, bar. C A plus D bar, bar, B B bar bar, एंड C plus C D C bar. plus D bar. का होल बार। हम्म A बार के लिए नॉर गेट यूज करो, फिर से दोनों को शॉर्ट कर दो, A आ गया इनपुट। फिर नॉर गेट एक और यूज किया, दोनों इनपुट शॉर्ट करी, इनपुट दिया B। थर्ड वाला ये C प्लस D होल बार है, तो यहाँ पर क्या होगा? C और D आ जाएगा. यस। C1 में C1 में D। सर हाँ जी बोलो। सर ये लाइक इसको नॉर गेट में कन्वर्ट करना लाइक क्यों हमें करना पड़ता है? ये तो कॉस्टली पड़ता होगा एज कम्पेयर टू जो सिंपल है, हाँ क्योंकि देखो इसमें उसके ज्यादा गेट्स इसके हम यूज इसके कर लिए रहे क्या हैं। होता है, देखो हमारे पास जो दो गेट्स हमने बताया ना आपको, एक नॉर गेट और एक नैंड गेट, इनको Yes, हम sir. बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। हम्म मींस इसको यूज करके आप कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ खाली एंड गेट यूज करना है तो एंड गेट खाली से पॉसिबल नहीं है, या मैं कहूँ खाली नॉट गेट यूज करना है उससे पॉसिबल नहीं है। सो इन दैट केस वी हैव टू यूज अ मल्टीपल डिफरेंट वैरायटी ऑफ गेट्स। एक एंड उठाओगे, एक नॉट उठाओगे, एक और उठाओगे। यहाँ पर क्या है, सब कुछ नैंड से ही बन रहा है, सब कुछ नॉट से ही बन रहा है। ओके तो नंबर ऑफ जो कि आपको कोई भी गेट उठाना तो आपको उसका आईसी पिक करना पड़ेगा, है ना? जब आईसी पिक करोगे, एक आईसी में 4 गेट्स होते हैं, तो आप एक गेट यूज कर रहे हो, बाकी 3 यूज नहीं कर रहे, फिर दूसरा आईसी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि अब 4 अपने मान लो गेट्स, मतलब आपके जैसे 7 गेट्स यूज हुए थे लास्ट वाले क्वेश्चन में, है ना? तो 7 Yes, यूज sir. तो आपको 2 आईसी से काम चल जाएगा सिर्फ, जबकि उसमें यूज करते तो आपको कितने कॉम्बिनेशन लेने पड़ते, यस ये भी बात है। है ना? तो इसलिए we always try to implement with the universal gates, all the gates। क्लियर हुआ ये वाला? अब यहाँ काउंट कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 गेट्स। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि जो पीपीटी में क्या डिफरेंट मेथड से किया हुआ है। इसको लेट मी इरेज इट। अब देखो पीपीटी में कैसे किया हुआ है, वो स्टेप फॉलो किया है उसने वन बाय वन। वी विल जस्ट गो टू द एंड रिजल्ट, इसको भी ज्यादा देखते नहीं हम। ये फाइनली बना 1 2 3 4 5 6 7 8 बने इसके, हमारे 7 लगे थे ना? यस सर। हाँ तो वो ये और एडवांटेज। अभी इसमें भी यहाँ पर इसने बी बार नहीं बनाया हुआ, ठीक है? सो दैट मेथड इज, हाँ बोलो। सर यही तो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि अगर वो मतलब लाइक उससे कम मार्जिन ज्यादा हो जाए, मतलब इस केस में आपका तो वो टारगेट, हमारा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, आपका टारगेट सबसे पहले क्या होना चाहिए कि योर सर्किट शुड हैव द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। रीजन बीइंग कि अगर मेरा मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स होगा तो मेरा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होगा, मेरा कॉस्ट भी कम होगा, मेरी बल्कीनेस भी कम होगी, इजी टू हैंडल भी होगा, ठीक है? तो आपकी टारगेट ये है कि कम से कम बना। अभी अगर आपको कोई मान लो आपको मिनिमाइजेशन टेक्निक नहीं आती कोई, तो आपने जो फंक्शन दिया था इसने उस फंक्शन को एग्जिस्ट कर दिया। देखिए हमने ये जो इम्प्लीमेंट किया दैट इज वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स और नॉर गेट्स। अभी मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा आज के मैप का, जिसमें आप किसी भी फंक्शन को पहले मिनिमाइज करोगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अभी तो Okay, आप ब्लाइंडली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, जो भी फंक्शन गिवन है। जैसे अभी हमने इसको फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया था, जब मिनिमाइज किया तो आंसर कितना आया था? 1 आया था ना सिर्फ। यस सर। हाँ तो अगर 1 आया था इसका मतलब इसके लिए कोई गेट चाहिए ही नहीं था। तो अभी यहाँ पर आपको जो इस पर्टिकुलर पीपीटी में सिखा रहे हैं वो सिर्फ मेथड सिखा रहे हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द सर्किट। अभी मिनिमाइजेशन की बात नहीं करी अभी मैं आपको सिखाऊंगा एक मेथड के मैप का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। उससे आप किसी भी फंक्शन को विद इन नो टाइम इम्प्लीमेंट करोगे, और वो भी मिनिमाइज्ड। ओके सर। ठीक है? नाउ देखो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, सॉरी, मिनिमाइज द गिवन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। अब यहाँ पर आपको मिनिमाइजेशन आ रही है, फिर वो बोल रहे हैं एक्सप्रेस द सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। अब यहाँ पर आपने उसको सीधा बोलो नहीं कि इम्प्लीमेंट करो, आपको ये क्या दिया हुआ है इसने? पाई एम का मतलब क्या होता है बताया था मैंने आपको? मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फंक्शन क्या होता है हमारा? 0 होता है। सो यहाँ पर एक मुझे बताओ कि एफ पाई एम लिखा हुआ है 5 10 12 13 14 15, इसमें कितने वेरिएबल्स क्या हैं? इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स है, बिकॉज द अपर वैल्यू इज 15। So with 4 variables you can go from 0 to 15, right? So definitely it's 15. अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 16 भी साथ में, तो definitely क्या होता हमारा 5 वेरिएबल्स हो जाता अगर 16 लिखा होता, ठीक है? अब
ये जो मैक्स टर्म्स है इसका पहले मुझे एक वो लिखना है कि जहां जहां ये मैक्स टर्म्स है अकॉर्डिंगली मैं लिखूंगा आउटपुट. सो लेट मी राइट इट. सो ये हमने लिख दिए 1, दिस इज माय 5, देन 10, 12, 13, 14 एंड 15. क्लियर है? सबको आता है लिखना? Yes, sir. Now from this function we are taking the complement of the function and applying the De Morgan's theorem. तो वो कैसे? इसका complement लिया, right, and De Morgan's लगाया. तो what we got? A bar BC bar D plus AB bar CD bar plus this and so on. ये लग जाएगा complement. सिंपल पूरे का फंक्शन का f complement लिया, तो जब कॉम्प्लीमेंट लिया डी मॉर्गन्स लगाओ तो पूरा कॉम्प्लीमेंट प्लस थी पहली टर्म में a प्लस बी बार प्लस c प्लस d था. तो ये क्या बन गया? a बार डॉट b डॉट c बार डॉट d बार. d बार आ गया यहाँ पर, d लिखा हुआ. लाइकवाइज नेक्स्ट, देन जो टर्म्स आपकी रिडंडेंट टर्म्स है उनको सेम कर दो. तो इनमें से जो देखो कॉमन निकाले हुए इन्होंने, है ना. सो जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट यूजिंग अ बुलियन अलजेब्रा. अब मान लो जो आपका मिनिमाइज निकल गया, लेट मी गिव यू आंसर. दिस इज अ मिनिमाइज रिजल्ट. अब इसको आपने इंप्लीमेंट करना है. अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो फंक्शन गिवन था उसको स्टेट में इंप्लीमेंट कर रहे थे. अब मैं कह रहा हूँ नहीं, फंक्शन को पहले मिनिमाइज करो. अभी हमने यहाँ पर यूज किया, वो क्या यूज किया? बुलियन अलजेब्रा. ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा से हमें ये आउटपुट मिलेगी बी सी बार डी प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी डी बार. तो ये किस चीज के आउटपुट है? फॉर दिस फंक्शन हुज मैक्स टर्म्स आर गिवन टू यू. अब मुझे अगर इसको इंप्लीमेंट करना तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? करें ट्राई. देखो मान लो इससे हम किससे करें? नैंड से करें, नॉट से करें? बताओ. सर नैंड से कर दो फर्स्ट. नैंड से करें. चलो नैंड, लेट मी ड्रॉ द आउटपुट नैंड गेट. आउटपुट में मैंने लिख दिया दिस इज माय फंक्शन f. f contains these four terms. this is my f, राइट. अब नैंड गेट से करना तो नैंड गेट से मेरे दिमाग में आता है a डॉट b द होल कॉम्प्लीमेंट, या आता है a बार प्लस b बार. तो ये किस फॉर्म में है? प्लस की फॉर्म में. तो इनपुट्स क्या होंगे बताओ मुझे इसकी 4 इनपुट्स. सर ये अभी और छोटी हो जाएगी, ये भी कॉमन ले. हाँ आई थिंक मैंने जल्दी बंद कर दिया, और छोटी होगी. यस, तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, फिर से बनाते हैं. ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आ गया, राइट. अब यहाँ पे जो आया ना ये एक्सप्रेशन किस चीज का है? इन टर्म्स ऑफ एसओपी आया है ना. आपको फंक्शन मैक्सिमम गिवन थी, तो उसने क्या बोला? एसओपी फॉर्म में निकालना है, पीएसओ में निकालना है. तो यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है, जो आपका आउटपुट है, टेक कॉम्प्लीमेंट एंड अप्लाई द डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो आपका एफ कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया? वापस एफ बन गया. तो ये आपकी आउटपुट है. समझे इस बात को? नहीं समझे? हमने पहले फंक्शन गिवन था एफ मैक्सिमम की फॉर्म में, ये वाला देखो. हमने क्या किया था? इसका कॉम्प्लीमेंट लिया यहां पर, ठीक है. तो एफ कॉम्प्लीमेंट हमारा ये आया. अब हमें तो एफ कॉम्प्लीमेंट करना है, नॉट एफ कॉम्प्लीमेंट. तो हमने एफ कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट किया, तो आपका ये आउटपुट आ गई. दिस इज व्हाट एफ. एफ कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? एफ ही मिलेगा आपको. तो सर हम सीधे भी तो सॉल्व कर सकते थे, फिर हम इसका f कॉम्प्लीमेंट ही क्यों लिया? कर दो सीधे सॉल्व, कोई इशू नहीं है. मिनिमाइज लेके आना है आपने बस. बेसिकली क्या होता है जब हम इस तरह से हैंडल करते हैं ना क्वेश्चन को पीओएस फॉर्म में, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मिनिमाइज इट. तो बेटर क्या होता है, इसको पहले कॉम्प्लीमेंट ले लो, एसओवी फॉर्म में ले आओ, मिनिमाइज कर दो, फिर दोबारा आप कॉम्प्लीमेंट लेके उसको पीएस में लो. इट्स अगेन इट्स योर चॉइस. ओके सर. अब ये मेरे पास आउटपुट आ गई एफ. अब मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग लेट्स से नैंड गेट. तो नैंड गेट की आउटपुट पे ये 3 टर्म्स आ गई, राइट. अब नैंड गेट मुझे पता है a डॉट b द होल कॉम्प्लीमेंट और a बार प्लस b बार. अब ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, लेकिन इनका कॉम्प्लीमेंट नहीं है. तो क्या करूंगा? पहले मैं शॉर्ट कर दूंगा, यहां पर लिखूंगा f कॉम्प्लीमेंट, राइट. अब इसकी इनपुट्स क्या होंगी बताइए? अभी इस फॉर्म में आ गए ना.
बोलो पहली इनपुट क्या होगी? B complement plus C plus D complement, बिल्कुल ठीक. then A complement plus B complement, यस. then A complement plus C complement D. राइट. अब ये मेरे को चाहिए, तो ये मेरी इससे कंपेयर करो. तो यहाँ पर एक और NAND गेट लगाऊंगा मैं, जिसकी इनपुट्स क्या होंगी? B complement, B, B. B, वेरी गुड. C complement or D? Complement. D. D, Likewise, for this A complement plus B complement, what should be the inputs? A or B? A and B only. And for A plus C plus ये वाला, sorry, A, C and D complement. एक मिनट, let me erase. Space कम थी इस पे. So this is also coming from a NAND gate whose inputs are A, A, C and D complement. D complement. And to obtain D complement, again take a NAND gate, short the two inputs. Similarly with the C. Is it clear to everyone? Yes, कोई sir. doubt इसके अंदर? Similarly, I think you can draw it with the NOR gate also, है ना? तो कोई भी यूज कर सकते हो आप NAND या NOR. अब दूसरा उसने क्या कहा था कि एक तो उसने कहा कि मिनटर्म्स जो पीओएस में निकालो, दूसरा क्या बोला उसने? एसओपी फॉर्म में बोला ना इसने आपको, एक्सप्रेस द सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिखना है. तो हम क्या करेंगे अब? दूसरा मेथड करेंगे इसके, दूसरा क्वेश्चन मतलब कि राइटिंग द एक्सप्रेशन यूजिंग द मिन टर्म्स. तो जो हमारी मैक्सिमम कीमत थी, बाकी मिन टर्म्स बचेंगी हमारे पास, तो वो हमने मिन टर्म्स लिख ली. देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर दैट, उसको मिनिमाइज कर दो फिर फर्दर. मिनिमाइज करके क्या मिलेगा आपको? लेट्स गेट द शॉर्टेस्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म. ये मिल गया. अब इसको इंप्लीमेंट कर लोगे आप आराम से? करूंगा, कर लोगे? बताओ. कर लेंगे सर. है ना? सेम, बिल्कुल सेम ही एग्जैक्टली. यस सर. So let's now start the K map. Is it visible to everyone, K maps? Visible है ना बच्चे? Yes, sir. So अब हम जो आपको टेक्निक सिखा रहे हैं वो है K map और कार्नो मैपिंग. इसको बोलते हैं कि जो भी हमको कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, बूलियन जब आप लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं होता कि टर्म्स कौन सी हमने ऐड करनी है, कौन सी हमने यूज कंबाइन करनी है. बट जब K map यूज करते हैं, that is going to give you always a minimal result. अब K map होता क्या है? So Boolean expressions, functions may be simplified using algebraic means, but it becomes difficult to predict which rule should be applied for the simplification. And as the number of variables increase, the process of simplification becomes more complex using the algebraic means. So this one map method provides the more straightforward method of simplification. So map method is just a pictorial form of the truth table or an extension of a Venn diagram. Right. The map method is popularly known as Carnot mapping. Right. This derived from the name of the proposer of this method. The Carnot map, it is a graphical representation of the logic system. It can be drawn directly from either minterms or next terms. Now let's try to construct. Suppose we are having n variable K map. Variable का मतलब वही जो हमने देखा था कि मान लो 3 variable है, 4 variable है. Suppose for n variable, the Carnot map will have a 2n squares. Squares का मतलब क्या होता है? Cells. So 2n squares होंगे and each possible input is allotted a particular square. In case of a minterm Carnot map, a 1 is placed in all those squares of K map whose corresponding terms are present in the SOP form. And 0 is placed in all those squares of the K map whose
corresponding terms are not present in the expression. For example, आपको एक function given है, उसमें मान लो कहा कि sum of min terms given है, तो it means वो वाली terms पे आपकी output 1 होती है. तो जब हम कॉर्नर मैपिंग बनाएंगे तो उस के मैप के अंदर जो स्केयर होगा, जो उस min term में corresponding होगा, वहां पर क्या वैल्यू प्लेस करेंगे 1, बाकी जगह क्या प्लेस करेंगे 0. We will show it in the next slides. So zeros are omitted for simplicity. And x जहां पर लिखा होगा ना के मैप के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम डोंट केयर कंडीशंस. ये बहुत हमारे हेल्पफुल होती है डोंट केयर कंडीशंस. कैसे? डोंट केयर का मतलब कि इट कैन आइदर बी 0, इट कैन आइदर बी 1. It means if I am giving you a min term and writing this min term is don't care, it means if you require, you can use that don't care to make a bigger group. So this don't cares are always required whenever we are making to form a bigger group for this K-map. What are the grouping? I will tell you. The terms identifying the different rows and columns of the K-map are designated in a manner that adjacent terms differ with each other by only one of the literals being complemented. What it means, if you remember, we have done a gray code, है ना? तो gray code में आपको याद होगा जब हमने कहा था कि 0 0 लिखा हमने, उसके बाद 0 1 लिखा, 0 1 के बाद next bit क्या होती है 1 1, फिर होती है 1 0. Why? Because here only within the 2 bits consecutive numbers, there is only 1 bit change. Likewise, if I compare this with this, only this bit is changing. If I compare this with this, only this bit is changing. So it means this is a correct gray code sequence. So यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई term को डालते हैं, they differ with each other with only one of the literals being complemented. Means either 0 था पहले वाला, वो 1 हो गया, या 1 था तो 0 हो गया. सिर्फ एक ही होना चाहिए चेंज. आगे देखते हैं. So extreme rows and extreme columns are considered adjacent. Let's show you first. Then in the max terms, अगर आपको given है तो 0 को प्लेस करोगे in the squares जहां पर आपको फंक्शन में given है कि ये max terms है, तो corresponding squares में आप 0 पुट कर दोगे, बाकी जगह पे 1 प्लेस कर दोगे. Right? So x is again used as a don't cares. The same thing here. Now let's try to show you. Yes. So this is the first figure A जो लिखा हुआ है. This is a square. इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार-बार यूज करना पड़ेगा इसके लिए. जो आपका ये वाला पार्ट है, हमने क्या बनाया है, एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर 4 पार्ट्स कर दिए, है ना? और यहाँ पर लिखा है A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिखा है A, यहाँ पर लिखा है B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिखा है B. और फॉर सिंपलिसिटी लेट मी ड्रॉ with 0 1, suppose 0 1 0 1, and I am writing here A. So what I am saying is that I am denoting here the rows with A and columns with B. First row indicates A0 means A complement. Second row says that A is 1 means A. First column indicates B is 0, it's B complement. Second column says B is 1, it's B. Now for the 2 variables A and B, how many combinations are possible? Only 4. Yes, sir. What are these? 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Right? So 0 0, जहां पर A भी 0 B भी 0, तो this is a square. So let me write this is M0, M1, M2, M3. So where to place M0? Here, because in this square my A is 0 and B is 0. Likewise, if I consider this one, here A is 0 and B is 1. This is min term 1. If I go down, where in the first column and second row, A is 1, B is 0. This is what? M2, M3. So this box is used where we have drawn the 4 squares and each square is having a defined min term. Is this clear? Yes, sir. Now, next क्या आपके पास? If suppose you are having a 3 variables, तो 3 वेरिएबल्स में कैसे किया मैंने? अब आपको ग्रे कोड सीक्वेंस याद रखनी है हमेशा. क्या करो? 3 बिट है तो आई राइट A here, B and C. So 3 बिट के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. 2n लिखा ना हमने यहाँ पर, तो 2n स्केयर्स बनेंगे. इट मींस 8 स्केयर्स बन गए. यहाँ पर लिखो A0, A1,
अब ऊपर जो 2 बिट्स हैं तो 2 बिट्स की जो ग्रे कोड की सीक्वेंस है हमारी वो फॉलो करेंगे 0 0 के बाद 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0 ये हमेशा सेम रहेगी आपकी 0 0 0 1 1 1 1 0 क्योंकि इस केस के बीच में 1 बिट चेंज है इस केस के बीच में 1 बिट चेंज है इन दोनों में 1 बिट चेंज है प्लस दिस लास्ट एंड दिस वन इज आल्सो हैविंग अ 1 बिट चेंज। तो आप ये लेके चलो जो आपका ये के मैप है अगर मैं ये वाला कॉलम उठाऊं और ये वाला कॉलम उठाऊं ये दोनों आपस में मर्ज हो सकते हैं इकट्ठे मींस बिकॉज यहां पर और यहां पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है ओनली दिस इज चेंज 1 बिट। तो आपको के मैप इज लाइक अ फोल्डिंग तो आपके जो एंड पॉइंट्स हैं उसको आप एक्सट्रीम पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हो ऊपर से भी नीचे से भी दोनों तरफ से कर सकते हो। सर हाँ जी बोलो। सर ये वाला पार्ट वापस बताना वो जो हाँ यही वाली ये वाला पार्ट देखो मैंने कहा अभी आपको थोड़ा आगे समझ जा जाएगा जब मैं कहता हूँ ना ग्रुप बनाते हैं मान लो सपोज करो आपके पास ये वाला कोई मिन टर्म है और एक ये मिन टर्म है सपोज अब इन दोनों मिन टर्म्स में बताओ कितने बिट चेंज आ रहा है इस मिन टर्म की वैल्यू क्या होगी 0 0 0 0 1 1 1 1 0 तो इफ आई आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर स्क्वायर 0 0 0 हाँ सर and this particular square has 0 1 0 0 1 0 how many bits are changed सर ओनली वन only one so it means these can also be used to form groups अभी हम ग्रुप्स बनाएंगे आगे थोड़ा सा वेट करोगे ठीक है ओके सर हाँ now let's erase it first अब आपको मैं दिखाता हूं कि सपोज वी आर हैविंग 4 वेरिएबल्स तो 4 वेरिएबल्स देखो कैसे बनाया हुआ है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 this side AB this side CD so what it means now can you tell me what should be the number here this is 0 yes sir 0 this is 1 1 this is 2 no not 2 just check it out 3 3 3 next क्या होगा 2 2 ओके नीचे आ जाओ ये क्या होगा 4 4 next 5 5 next 7 7 next 6 6 नीचे वाला ये 12 12 next 13 13 next 15 15 next 14 14 नीचे 8 8 ठीक है next 9 9 next 11 next 10 10 9 कोई ऐसा बता इसको नहीं पता ये नंबर मैंने कैसे लिखा तो प्लीज टेल मी सबको क्लियर है ये नंबर कैसे लिखे हमने वेरी Yes, गुड sir. ओके नाउ लेट्स गो अहेड अब मान लो देयर आर 4 मिन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स सपोज अब हम क्वेश्चंस करके दिखाएंगे आपको 4 मिन टर्म्स गिवन है आपको फॉर 2 वेरिएबल्स तो आपको ये उसने वही बता रखा है m0 m1 m2 जो हमने पहले की डिस्कस किया वही बता रहा है यहाँ पर भी मींस जो भी वेरिएबल का नाम होगा xy होगा xy लिखोगे ab होगा ab लिखोगे जो भी होगा राइट तो यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको the zeros and ones marked in each row and column designate the values of the variables so variable x appears primed in row 0 and unprimed in row 1 similarly y is primed in first column and unprimed का मतलब कि वो जो हम बोल रहे हैं bar prime means bar unprimed means not bar right true form है so अब मान लो आपको ये है the map can be used to mark the following functions f1 is equal to let's say x y और x plus y right so यहाँ पर देखो x y है अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से जो ये बता रहा है f1 is equal to x y it means आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है x into y तो इट मींस यहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 है तो वो कौन सी वैल्यू हुई खाली यही तो वैल्यू हुई और बाकी जो क्या होगा फंक्शन मेरा 0 होगा 0 आएगा likewise if suppose you are given the function x plus y let's say x here y here 0 1 0 1 now he's saying x plus y means x1 है x1 कहाँ है सही है
सर सेकंड रो में ही है, सेकंड रो में ही है। फिर सेकंड रो में आएगा। हाँ दोनों में आ गया। फिर y1 है, y1 कहाँ पर है? सेकंड कॉलम में। रो में सेकंड तो मेरा ये फंक्शन बन गया। गॉट इट? सर लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे हम? लाइक हमने ये तो अभी लिख अभी लिया। यूज कराते हैं। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि के मैप कैसा होता है, उसके अंदर कैसे एंट्री करते हैं। अभी इसको जब यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा ये तो चमत्कार हो गया। कैसे इसको बहुत ही इजीली विद इन नो टाइम इट इज गोइंग टू मिनिमाइज इट। इतना क्लियर है तो बताओ मुझे। यस सर। ओके लेट्स गो अहेड। अब देखो यहाँ पर क्या बना रखा है, ग्रुप बना रखे। अब आपने क्या करना है, आपको मैं सिंपल सी जो बात समझा रहा हूँ वो शॉर्टकट्स है। जब भी आप की मैप बनाओगे, पहला क्या होता है, उसको ब्लैंक ड्रॉ करो। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया, ड्रॉ ब्लैंक ड्रॉ किया आपने। ब्लैंक ड्रॉ करने के बाद 0101 जो नंबर है वो लिख दो और वेरिएबल लिख दो ए बी जो भी है आपका, एक्स वाई जो भी है, व्हाटएवर इट इज, राइट, जो भी गिवन है। उसके बाद जो टर्म्स गिवन है, जैसे आपने ये वाला हमने बनाया था 0 1 1 ये फिल कर दिया। आफ्टर पुटिंग इट नाउ वी नीड टू फॉर्म द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स कैसे बनाने होते हैं आपने? जितना बड़ा ग्रेटर इज द ग्रुप, smaller is the value. What it means? पहली बात, आपने सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर तो 4 सेल का के मैप है तो आपका सबसे बड़ा ग्रुप किसका बन सकता है? या चारों का बनेगा, या 2 का बनेगा, या 1 का बनेगा। तो तो ये तीन का भी ग्रुप कैसे बनाना है? 1 का मतलब अकेला, जिससे कोई आसपास है ही नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या होगा कि पहले बड़े ग्रुप को देखना है, सबसे छोटा नहीं देखना है। पहले सबसे बड़ा देखो, बड़े के बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 2 की पावर में बने ग्रुप, 2 की पावर n में बने ग्रुप। आइदर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। ये नहीं कि 6 का बना रहे हो, 4 का बना, 3 का बना रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब हमने ये ग्रुप बनाया। ग्रुप कैसे बनाया हमने? हमने कहा कि जो एडजेसेंट है, ये 2 दिख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में सॉरी, और सेकंड रो में, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ देखो ध्यान से, जो एडिशन 1 से हमने उनका एक ग्रुप बना दिया। राइट, अब जब इनका ग्रुप बनाया, ये कैसे बनाना है हमने? या तो वो उसके नेबर हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी हो सकता है, पर डायगोनल में ग्रुप नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, या तो वो 1 के नीचे 1 हो, 1 के लेफ्ट में 1 हो, 1 के राइट में 1 हो, 1 के ऊपर 1 हो, 1 के नीचे 1 हो, कहीं भी 1 हो सकता है। राइट, वी कैन फॉर्म द ग्रुप, एंड देन वंस वी फॉर्म द ग्रुप, देन वी हैव टू रीड इट। अब वो रीड कैसे करना है वो बताते हैं आपको इधर में। पहले ये फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस वाई, ये तो हमें पता था फंक्शन, राइट। लेकिन इसको रीड करने का तरीका समझाता हूँ। वो क्या है कि आपको, लेट मी मेक दिस प्लीज, आपको मान सर लो ये यहाँ पर वही कैसे लिखा है? वही समझा रहा हूँ आपको। ये फंक्शन गिवन था आपने, ये आपको सपोज को टर्म्स गिवन है। अब मुझे इसका वैल्यू बताने की, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो क्या करो, पहले ग्रुप बनाया हमने, एक ग्रुप ये बनाया मैंने, एक ग्रुप मैंने ये बना दिया। अब रीड कैसे करना है इसको? तो पहले देखो, फर्स्ट ग्रुप मान लो आपका ये वाला था। इस ग्रुप में कौन सा वेरिएबल ऐसा जो चेंज नहीं हो रहा एक्स और वाई में से? सर जिसमें एरो लगा है उसमें तो x नहीं चेंज हो रहा। हाँ, तो एक्स चेंज नहीं हो रहा, और एक्स की वैल्यू क्या है? 1। तो इट विल रेट एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 होती तो एक्स बार कर देता। सर ये नीचे में देखना, सिर्फ मैं जहां पर बना होगा ग्रुप वहीं पर देखना है। जिसका ग्रुप बनाया है ना हमने, उस ग्रुप में पूरे एलिमेंट्स में देखना है। जैसे मैं इसकी वैल्यू नोट करूं अगर, तो इसकी वैल्यू में क्या आता है? x1 आता है, x y y0 आता है, कॉम्प्लीमेंट y0 और इसमें आता है, क्या आता है? x xy आता है, y 1y आता है। तो इट y1 मींस आता y इज चेंजिंग। है, x is एक्सचेंज। not changing। जो चेंज हो रहा होता है उसको छोड़ दो, जो सेम है उसको पकड़ लो, बस वो आंसर आएगा आपका। ओके ओके सर। लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकंड कॉलम, यहाँ पर क्या है, x इस टाइम पे 0, x टाइम पे 1 है, लेकिन y 1 ही है हमेशा दोनों केसेस में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? y। y लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन। सपोज आपको एक ये के मैं देता हूँ और कहूंगा ये बनाया हुआ है। अब मुझे बताओ कि ग्रुप्स कौन से बनेंगे? एक तो ये बनेगा, और फिर नीचे से अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, दोनों ग्रुप्स की। इसकी क्या बनेगी? y y इसकी y कॉमन आता है। कॉम्प्लीमेंट।
क्योंकि यहाँ हाँ, पर y 0 और y की 0 दोनों में है, x चेंज हो रहा है, और नीचे वाला तो हमारा क्या रहेगा, x। x ही रहेगा। तो इसके आंसर x + 5 आ गया। सर जो चेंज होगा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगा देना। नहीं, जो चेंज हो रहा है उसको फेंक दो, ये तो बताया मैंने। यहाँ पर चेंज x हो रहा है इस वाले ग्रुप में, जो फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम में देखो ध्यान से, x0 फिर y1, और ये तो हमारे y सेम ही है, तो चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है खाली, यस सर। तो x को छोड़ दिया हमने इस ग्रुप के आंसर के, और y की और 0 तो y बाहर लिख दिया हमने। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी करेंगे प्रैक्टिस, जरा समझ आएगा। अब देखो ध्यान से, लेट्स टेक द 3 वेरिएबल मैप। देयर आर 8 मिनटर्म्स फॉर 8 स्क्वायर्स। अब इसके लिए आपको स्टेट में क्वेश्चन देता हूं मैं, स्टार्ट आउट डूइंग दिस। सपोज आपको ये के मैप गिवन है 3 वेरिएबल का, इसके अंदर आपके पास 8 स्क्वायर्स होंगे, है ना, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। लेट्स से A B C। अब सपोज करो मैं आपको मिनटर्म्स देता हूं, क्वेश्चन नहीं करते सीधा। F A B C is given to you as sum of minterms 2 3 5 6 7। तो क्या करोगे पहले बताओ मुझे, 2 कहां पर होता है, कौन से रो कौन से कॉलम बताओ मुझे। Where should I put? सर ये सबसे ये वो यहाँ पे होगा जहाँ, हाँ यहाँ पे। ये 1 आ गया। 3 क्या होता है, सर ये इसके लेफ्ट साइड में जहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है। 5 सर वो आएगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम। 6 सर लास्ट, बिल्कुल लास्ट में, 7। यहाँ पे, हाँ यहीं पे। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। तो अब मैं कहूंगा इसकी ग्रुपिंग करो। अब ग्रुप बनाओगे कैसे, मैंने कहा था बड़ा ग्रुप बनाना, तो ये 8 सेल का है तो पहले 8 से शुरू करोगे, 8 का बनता है, 8 का तब बनेगा जब सारे 1s होते हैं, वो नहीं बन पाएगा। फिर देखो 4 का बनता है, फिर देखो 2 का, फिर देखो 1 का, तो यहाँ पर 4 1s का इकट्ठे बनता है, दिख रहा है। यस सर। अब ये 1 बेचारा अकेला रह गया, है ना, इसको कोई किसी की ग्रुप नहीं बना, इसको आप इसके एडिशन से दोबारा ग्रुप कर सकते हो। So one which is already covered in the other group can also be reused again to form another group. Got it? सर हाँ बोलो। सर बाकी सर कल कर लें सर, एक्चुअली टाइम हो गया है। टाइम हो गया? यस सर। चलो इसका आंसर लिख देते हैं फटाफट, क्या आंसर आएगा बताओ मुझे। इस 4 का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ए चेंज हो रहा है ना, यस सर। तो ए को छोड़ दो, ए बार आ जाएगा तो ए बार बी क्यों आएगा, इस 4 के जो फॉर्म जो करा मैं 4 ग्रुप, इस 4 में ए तो हमेशा चेंज हो रहा है, तो तो विल मैंने नॉट, ए बाहर आ जाएगा बोला। ए बार भी नहीं आएगा, BC आएगा। जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको छोड़ दो, उसको भूल जाना है हमें आंसर में। वही बोला मैंने सर, ए बाहर आएगा बाहर। अच्छा बाहर आएगा मैंने कहा आप कह रहे हो ए बाहर आएगा, ओके। और बीसी देखो 1 1 से 1 0, क्या चीज चेंज हो रही है, बीसी में बीसी देखो ना, इसमें और इसमें, क्योंकि आपका ये 2 कॉलम यूज हुए ना इस 4 के लिए, तो इन दोनों कॉलम में देखो बीसी 1 1 था, एक में 1 0, तो सी चेंज हो रहा है, सर बी ही आ रहा है इसमें तो। नहीं सी चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है। 1 से 0 होगा सी, हाँ तो सी आंसर चेंज क्या हो है रहा है, खाली इसका बी। बी आएगा। सिमिलरली फॉर दिस ग्रुप बताओ क्या आएगा आंसर, इसमें ए क्या है, ये सी। ए आएगा। ए फिक्स है, व्हाट अबाउट बीसी, सर बी तो चेंज हो रहा है, सी छोड़ दो, फिक्स्ड है। सी की वैल्यू क्या 1 है 0 है, सर तो इट विल बी AC। तो आंसर क्या आएगा इसका, सिंपली दिस इज बी इक्वल टू प्लस AC। B प्लस AC, राइट। चलो अब स्टॉप करते हैं, अब टाइम हो गया।